ऑन कर लीजिए। क्या हो रहेगा, आई एम इन लिख दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। जो भी डाउट होगा अभी पूछ लीजिए, मैं तो फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा। उसके बाद भी पूछ सकते हैं, पर अभी पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। टाइम तो एक क्वेश्चन, आई एम एबल टू, आई एम ऑडिबल ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑडिबल। श्री राम ऑडिबल, नागा लक्ष्मी प्लीज ऑन योर वीडियो, इफ यू कीप योर वीडियो ऑन इट विल बी प्रोडक्टिव, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आई एम ऑडिबल, श्री राम म्यूट में हूँ, ऑडिबल, अरिंदम ऑडिबल, Yes, yes. ओके, ठीक है, आई एम ऑडिबल Yes, you राइट। are audible. Okay, write in the group I am in everybody so that nobody misses. Okay, okay. What do you mean by internal audit? This is a basic question which is asked. Okay, the internal audit is an independent, objective assurance and consulting designed to add value and improve an organization's operations. So it is it helps the organization accomplish its objective by bringing a systematic discipline. So this answer you can make up. ठीक है, तो if they ask you what is the purpose of internal audit or why, what do you mean by internal audit, is basically to help an organization. It's well internal control, managing internal control. How is internal control? Whether its control is done properly or not. So you don't have to read the entire answer, but main thing is you will be able to explain. Like internal control is the key word. Okay, mitigate the risk. I think so. This is clear. Okay, तो this आपको अपना own words में बनाने से हो जाएगा, ठीक है। तो what is internal audit is something which they ask. Okay, इसको लेके कुछ वो नहीं होना चाहिए। तो what is internal audit? Whether CA or CMA internal audit, this is a basic question which is asked. Okay, and what is the difference between a stat audit and an internal audit? ठीक है, तो what is the difference between stat audit and an internal audit? And this is also asked. Okay, anybody can tell what is the difference between an internal audit and a stat audit? Who will be participating? I want you to participate. Who will be participating? What is the difference between an internal audit and a stat audit? The जो stat participate audit is करेगा done. उसका जल्दी बोलिए। वीडियो The ऑन stat करके बोलिए, audit is done. वीडियो ऑन The कर stat लीजिए, audit is. वीडियो ऑन कर लीजिए। सर मेरे यहाँ पे नेट थोड़ा ये है, मेरा थोड़ा इशू होगा आज चलेगा, वीडियो का कोई सर। दिक्कत नहीं, चलिए चलिए चलेगा, बोलिए। हाँ, Stat audit is done predominantly to report that whether the statutory and regulatory compliances are proper or not, whereas internal audit are predominantly done so that it's a tool of aid to the management that the internal controls of the company are working properly or not. That is the major difference between internal and stat audit. ठीक है, एक बार अभी आंसर को ग्रुप में भी लिखिए, ठीक है। स्टैट ऑडिट इज डन एज पर द स्टैट्यूट, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, स्टैट ऑडिट, कंपनीज एक्ट। इंटरनल ऑडिट इज गवर्न बाय विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट? विच सेक्शन? Section 138. Yes, this question can be asked. Okay, so internal audit is governed by which section? By which section? इसका ग्रुप में आंसर लिखेंगे आप लोग सारा आंसर ग्रुप में लिखते जाइए एज अ रिप्लाई, Section, राइट क्विकली so ना, section 138, section राइट इन द ग्रुप। 138 provided the required threshold criteria is met. ग्रुप में लिखिए सर, आप लोग सब ग्रुप में लिखिए। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं लिखेंगे, देखिए किसी का इंटरनेट खराब होगा, कोई आंधी तूफान में होगा, अभी दुबई में रेन स्टॉर्म चल रहा है, तो हम लोग को पता नहीं था आपका क्या चल रहा है, राइट। पर अगर ग्रुप में लिखेंगे तो Right. कितने स्टॉर्म हो, कितने आंधी तूफान हो, आप लोग का बेनिफिट है। तो ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, बात समझ में है? तो ग्रुप में लिखते जाइए जो भी चीज है। सेक्शन 138 एज अ रिप्लाई, ठीक है। सेक्शन 138 लिखिए, खाली 138 मत लिखिए, ठीक है। सेक्शन 138 का लिमिट बताइए क्या होगा? व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेक्शन 138? नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर इतना कैसे पढ़ेंगे? बहुत कुछ पढ़ने के लिए, यस पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। पेड अप शेयर कैपिटल पढ़ने सर के मैं बोलता हूँ सर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, डिपॉजिट 25 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़। हाँ, इसका लिखिए ग्रुप में 25 50 100 200, हमको तो ऐसे याद हाँ है 25 50 100 200। राइट सर, 25 एंड 50 सर 100। एवरी लिस्टेड कंपनी भी आएगा। हाँ, हाँ एवरी लिस्टेड लिस्टेड, हेलो, एक बार कंपनी। ग्रुप में लिखिए इसका आंसर 25 50 100 200। 25 होगा एवरी कैपिटल, लिस्टेड कंपनी 50 बोरोइंग होगा, टर्नओवर 200 होगा, 100 क्या होगा, 100 देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो लोन 25 एंड द 50, एडवांसेस। एक बार ग्रुप में लिखिए इसका आंसर, जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए, जल्दी जल्दी रट लीजिए सब चीज, ठीक है। तो सेक्शन 138 हो गया, ठीक है।
गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये सब आप लोग को आना चाहिए, हम ये सब नहीं करना चाहते ये सब लेवल में आके। ये आप लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल, व्हाट इज डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज ऑन लैंड, ठीक है। तो दिस थिंग्स यू शुड बी एबल टू डू, ठीक है। एक बार ये रीड करेंगे तो मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो आप मेल ले लीजिएगा कनिका मैम से। व्हाई डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज ऑन लैंड, बिकॉज लैंड हैज एन इनफिनाइट यूजफुल लाइफ। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, तो दिस इज इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बोल देना। अमोर्टाइजेशन गुडविल का होता है, नहीं सॉरी, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट का होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पूछता है, एकदम सिंपल आंसर है, ग्रुप में लिखिएगा। क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। लिखते जाइए, ग्रुप में लिख डेप्रिसिएशन दीजिए। चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सर एक टेंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, फटाफट लिख दीजिए। देखिए आपको शायद पता होगा आंसर, हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो आंसर देख लेगा। ओके हाँ, मेरे को पता चल गया, ठीक है। राइट इन द ग्रुप दिस आंसर, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट। फटाफट लिख लीजिए प्लीज, राइट इन द ग्रुप, हाँ, सो दैट वी कैन क्विकली गो थ्रू। ओके, मेरे को एक क्वेश्चन बताइए, इन गुडविल वेदर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, ये क्वेश्चन पूछता है। नो इन सर, गुडविल वेदर व्हाट इज चार्ज ऑन गुडविल, amortization, amortization, correct? सर यस सर, No, no goodwill, goodwill में no depreciation, no amortization, goodwill is impaired। लिख लीजिए इसका आंसर ग्रुप में, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। goodwill is only impaired, no amortization on goodwill। इसका आंसर गुडविल का, गुडविल इज impaired। देखो गुडविल को अमोर्टाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि वाई, आज आपका इज्जत है, आपका इज्जत 2 सेकंड में खत्म हो सकता है, right? Goodwill is something is that way, right? You cannot ascertain the value of goodwill। 2 मिनट में आपका कुछ ऐसा न्यूज आ गया आपके अगेंस्ट में कंपनी में, and your goodwill can come from 100 to 0। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain the life of goodwill, तो उसको impairment होता है, impairment। goodwill is impaired, not amortized। and land का क्या होता है, depreciation सर नहीं होता है व्हाट इज भाई। इम्पायरमेंट? impairment क्या होता है, आपका आज मोबाइल है, अच्छा चल रहा है, राइट, 2-3 साल बाद उसका क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। अगर वो टूट गया तो अचानक से गिर के वो इम्पेयर हो जाएगा, दैट इज इम्पेयरमेंट, मतलब सडन लॉस। इम्पेयरमेंट इज अ सडन लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, द सडन लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। इम्पेयरमेंट का मतलब हो गया, इम्पेयर हो गया मतलब डैमेज हो गया, इम्पेयरमेंट करना। तो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे चला गया, जो बुक वैल्यू है ना, आपका जो बुक वैल्यू है जो भी एसेट का, उससे भी डाउन चला जाता है वो। उसको अगर मैं सिंपल भाषा में अगर उसमें इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पेयरमेंट, ये पूछता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पेयरमेंट, फटाफट लिख दीजिए ग्रुप में, बुक वैल्यू बी माइनस फास्ट। मार्केट वैल्यू। CA माइनस RA, लिख लीजिए इसका आंसर ग्रुप में, CA माइनस RA, CA माइनस RA। CA का मतलब आप देख लीजिए, ठीक है। CA मतलब क्या होगा, CA माइनस RA, CA माइनस, CA का मतलब कैरिंग अमाउंट, carrying amount of कैरिंग asset। अमाउंट, लिख कैरिंग लीजिए राइट इन अमाउंट। द ग्रुप, हाँ सब कुछ ग्रुप में लिखिए, बाद में इजी रहेगा एकदम। सी इज कैरिंग अमाउंट एंड RA इज रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट। देखिए इंडेक्स भी करवा रहे हैं आपको साथ ही साथ में, ठीक है। तो CA माइनस RA, ओके। RA का ब्रेकअप क्या होता है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ RA। हम जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर उसकी आप वैल्यू, पूछ रहे हैं ब्रेकअप ऑफ RA। सर as per Ind AS 36 value in use or WDV of the asset whichever is higher। ग्रुप में लिखिए इसका आंसर। इसमें दो होता है, एक तो फेयर वैल्यू होता है कुछ, और एक चीज और होता है RA का। व्हाट द ब्रेकअप RA, समथिंग टू माने डिस्काउंटेड वैल्यू कुछ होता है ऑफ समथिंग, इसका आंसर देख वैल्यू लीजिए आप इन लोग। यूज, हाँ वैल्यू वैल्यू इन इन यूज यूज। होता है, वैल्यू इन यूज होता है एंड फेयर वैल्यू होता है, कुछ ऐसे कुछ होता है हाँ, फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर, Value विच in एवर इज हायर। use and recover, sir, value in use and recoverable amount whichever is higher। हाँ ये इसका होता है आंसर लिख लीजिए, इसका रिप्लाई में लिखिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए वैल्यू इन यूज या फिर ये लिखिए, recoverable amount। हाँ ग्रुप में लिखते नहीं नहीं, जाइए सब। रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर इज रिकवरेबल हाँ अमाउंट। हाँ हाँ, ग्रुप में लिख दीजिए, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा तो ये सब क्या ही, व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट, जनरल एंट्रीज, ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, सब R2R का क्वेश्चन है आपका। जो अभी R2R होता है ना, कंसेरो, जेनपैक्ट, एक्सेंचर, तो इस तरीका का क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांसेस रहता है। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस वगैरह का, अक्रूवल्स, कंसेरो ग्लोबल का काफी लोगों का लग रहा है,
तो यहाँ पर मैं सब चीज का आने का चांसेस रहेगा थोड़ा। ड्राइंग्स BRS क्या होता है तो ये पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, डिफिकल्टी लगेगा तो पूछ लीजिएगा। क्रेडिट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, P2P पूछता है ज्यादा करके, ठीक है। तो P2P प्रोसेस करता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, P2P साइकिल, ठीक है। तो P2P साइकिल पूछता है, P2P प्रोसेस, ओके। ये आंसर एकदम अच्छा से कर लीजिएगा। वो पूछेगा कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन इंटरनल ऑडिट, तो बोलना आई हैव डन द P2P प्रोसेस ऑडिट, ठीक है। तो व्हाट इज P2P? दिस स्टेप्स एक्वाजिशन ऑफ द गुड्स एंड टू द पेमेंट टू द सप्लायर, इन्वॉल्व इन एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पेमेंट टू द सप्लायर। तो P2P प्रोसेस में क्या क्या चीज होगा ये अच्छा से पढ़ लीजिए। ये पूछते हैं सबसे ज्यादा, रिक्विजिशन, वेंडर सिलेक्शन, पॉइंट्स लिखते जाइए। P2P में क्या क्या स्टेप्स होगा, P2P का स्टेप्स लिख लीजिए। ये आपको 100% पूछेगा इंटरनल ऑडिट में, हो ही नहीं सकता ही नहीं पूछे, ठीक है। P2P का स्टेप्स, एक तो रिक्विजिशन, एक होगा वेंडर सिलेक्शन, एक होगा PO क्रिएशन, परचेज एक होगा ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड, गुड एक होगा रिसीप्ट्स, इनवॉइस प्रोसेसिंग, एक होगा पेमेंट ऑथराइजेशन, एक होगा पेमेंट एग्जीक्यूशन। 7 पॉइंट्स है, फटाफट लिख लीजिए ग्रुप में। ये 7 पॉइंट सारा लिख लीजिए देख के, ठीक है। फटाफट ये P2P का स्टेप्स का आंसर एकदम लिखिए ग्रुप में, क्या क्या पॉइंट्स हैं, जिसको एक बार पढ़ भी लेते हैं फिर। रिक्विजिशन, ठीक है, फटाफट लिख लिए। 7 पॉइंट पे फटाफट लिख लीजिए आप लोग ग्रुप में, राइट इन द ग्रुप। रिक्विजिशन लिख लीजिए, जो लिखेगा उसका जल्दी से क्लियर हो जाएगा एकदम। रिक्विजिशन, वेंडर सिलेक्शन, फटाफट लिखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। रिक्विजिशन, वेंडर सिलेक्शन, PO क्रिएशन, गुड्स रिसीव्ड, इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड पेमेंट ऑथराइजेशन। उसके बाद भी है पेमेंट एग्जीक्यूशन। 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है, एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा ये फटाफट। इतना टाइम नहीं लगता है, एग्जाम में आपका अगर मिल जाएगा बगल में, फटाफट लिख लेंगे ना। वैसे लिखिए फटाफट, बी क्विक। कौन कौन आया है? ओके, गुड, गुड ऑडियंस। मणिकांता, श्रीराम, वेंकटेश, राजेश, योर फर्स्ट सेशन है राजेश, ठीक है। बी एक्टिव, ओके। आप लोग वीडियो सब ऑन रखिए, ठीक है। वीडियो ऑन रखने से ज्यादा अच्छा रहता है। पॉइंट्स लिख लिए, फटाफट लिखिए। P2P स्टेप्स, P2P स्टेप्स लिखिए। दूसरा का वेट मत करिए, आप खुद लिखिए P2P स्टेप्स क्या है फटाफट में। जल्दी P2P स्टेप्स लिखिए। भारती गुप्ता वीडियो ऑन कर लो। सिमरन, सिमरन ठीक है तुम गेस्ट। अरिंदम, नागा लक्ष्मी, ऑफर लेटर लाइए जल्दी। P2P स्टेप्स फटाफट लिखिए, भारती गुप्ता ग्रुप में। आपसे कभी बात नहीं हुआ मेरा, CV वगैरह दीजिएगा भारती गुप्ता, ठीक है, पर्सनली मेरे को। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह दिखाइएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे को, यस सर, कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। इसका आंसर लिखिए जल्दी जल्दी। PO क्या क्या था, हम तो भूल ही गया। अरिंदम लिखो भाई। P2P स्टेप्स जल्दी, स्पीड में करो। स्वीटी लिखो जल्दी जल्दी, वीडियो ऑन कर लो। P2P स्टेप्स, वीडियो ऑन रखो आप लोग, क्यों वीडियो बंद रखा है? आप लोग का नुकसान है, मेरा थोड़ी ना नुकसान है, आपका नुकसान है, समझे। नुकसान 4-5 लाख का ही है, ज्यादा नहीं है वैसे, ठीक है। P2P स्टेप्स फटाफट लिखिए, P2P स्टेप्स। पेमेंट दिखाना पड़ेगा ऑथराइजेशन, मुझे, एक बार स्क्रीन दिखाना पड़ेगा आप लोगों को P2P स्टेप्स के लिए। भुवन लिखो भाई, भुवन, वेरी गुड। रिक्विजिशन, पेमेंट, वेंडर क्रिएशन। चलिए रिक्विजिशन बताइए क्या होगा, पार्टिसिपेट करिए जी, हाँ पार्टिसिपेट करिए, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी होगा, ठीक है। रिक्विजिशन बताइए, कौन बताएगा रिक्विजिशन क्या होता है, व्हाट इज रिक्विजिशन? जो पार्टिसिपेट करेगा उसका जल्दी लगेगा, देखिए। मटेरियल डिपार्ट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होता है उसके लिए वो बनाते हैं, MRN बनाते हैं और परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं।
पीआर होता है यहाँ। तो पहले परचेज रिक्वेस्ट होगा। देखिए आप लोग खाली मटेरियल पढ़ेंगे तो रट के और बोल देंगे फिर सवाल क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा और जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए समझ के पढ़ेंगे तो होगा। पीआर रेज होता है पहले, परचेज रिक्वेजिशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है इसमें, वेंडर सिलेक्शन। नागालक्ष्मी, वीडियो ऑन कर लो, नागालक्ष्मी, ठीक है, नागालक्ष्मी, ठीक है, चेन्नई। वेंडर सिलेक्शन होगा उसके बाद। वेंडर सिलेक्शन में आप क्या क्या चीज देखोगे, व्हाट यू विल चेक इन द वेंडर सिलेक्शन, व्हाट यू विल चेक इन द वेंडर सिलेक्शन। जब आप वेंडर सिलेक्ट करोगे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब वेंडर सिलेक्ट करोगे तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी चेकिंग। पहले तो आपने परचेज रिक्वेजिशन किया है ना, परचेज रिक्वेस्ट, राइट, आपने रेज किया कि एक परचेज रिक्वेस्ट है, वो अथॉरिटी से अप्रूव करवाया, यू टेक द अप्रूवल ऑफ दैट परचेज रिक्वेजिशन। Then there will be a selection of vendor. So what are the points you will be keeping in mind while selecting a vendor? The Or what are credibility the of the internal vendor. सर auditor? क्वालिटी ऑफ मटेरियल, परचेज प्राइस, हाँ, The credibility मटेरियल of कितना vendor. पुराना है, वेंडर कितना पुराना है, तो दोज थिंग्स यू विल बी चेकिंग। इंटरनल ऑडिटर वो देखेगा कि हाँ वेंडर नकली तो नहीं है, रिलेटेड पार्टी तो नहीं है ना, ज्यादा दाम में तो नहीं ले लिया, रीजनेबल प्राइस में दे हैव टेकन द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज व्हाट दे विल बी चेकिंग। गॉट माय पॉइंट ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मणिकांता, वीडियो ऑन रखो। इंटरनल ऑडिट में ही आपको बताओ, दुबई हो कहीं पर में हो, इंटरनल ऑडिट में काफी ज्यादा वैकेंसीज होता है, याद रखिएगा। हर इंसान को इंटरनल ऑडिट कराना आज का डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रॉड 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 बहुत होने लग गया, ठीक है, इसलिए। चलिए, और सीए में को तो काफी लेते हैं, सीए को तो लेते ही है, हाँ, इसमें वेंडर सिलेक्शन। उसके बाद परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर उसके बाद पीओ क्रिएट होगा। तो परचेज ऑर्डर इज जनरेटेड बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड वेंडर स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द गुड सर्विसेज, क्वांटिटी, प्राइस एंड द डिलीवरी टर्म्स। तो पीओ क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको पूछेंगे अभी हम, ठीक है, जो वीडियो बंद रखेगा उसको ही पूछेंगे, ठीक है, नहीं बताएगी तो सेशन के बाद झाड़ खाइएगा अच्छा से, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड, goods received upon the delivery of the goods or the completion of services, a good receipt is prepared to verify the quantity। इससे क्वेश्चन बनेगा थ्री वे मैच क्या होता है। तो थ्री वे मैच पूछते हैं लोग, थ्री वे मैच, एक होता है थ्री वे मैच, एक होता है फोर वे मैच, ठीक है। तो थ्री वे मैच क्या होगा, व्हाट इज थ्री वे मैच, क्या क्या चीज आएगा थ्री वे मैच, बताओ जल्दी मैच विद द जीआरएन, परचेज हाँ, ऑर्डर एंड इनवॉइस। लिख दीजिए, ग्रुप में लिखिए। और फोर वे मैच में क्या होगा, फोर वे मैच में क्या होगा, जल्दी लिखिए। थ्री वे मैच, फोर वे मैच, थ्री वे मैच में फटाफट लिखिए आंसर इसको। थ्री वे मैच में क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखिए, इतना स्पीड में आप लोग जो खाली ज्ञान ले रहे हैं ना, फायदा नहीं होगा आपका, देख लीजिएगा। हम अपना, जो पार्टिसिपेट करेगा उसको ही फायदा होगा, याद रखिएगा, नजर लग जाएगा, जब पढ़ के जाएगा वो आएगा नहीं, जो पार्टिसिपेट करेगा उसको देखना सब कुछ सही जाएगा। तो नजर मत लगाइए। जीआरएन, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, वेरी गुड। और फोर वे मैच में क्या होगा, व्हाट इज फोर वे मैच, फोर वे मैच में आई थिंक एक चीज और होगा, पीआर हो जाएगा आपका, पीआर पीओ इनवॉइस जीआरएन, लिख लीजिए, पीआर पीओ इनवॉइस जीआरएन, ठीक है। तो पीआर पीओ इनवॉइस, पीआर लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिए फोर वे मैच में, ठीक है। ये हो गया। तो ये वाला इजी है, मोटा मोटी बना लोगे। देखो इसका मैं ना दूसरा तरीका से आपको याद करवा देता है, ये बहुत पॉइंट्स एकदम इजी पॉइंट्स है, मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, दिस आर वेरी इजी पॉइंट्स। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका से समझाता हूँ। परचेज आपका गई है पी टू पी प्रोसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन सिंपल एग्जाम्पल, ओके। आपका फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी, ओके, आटा, आटा इन इंग्लिश चावल, ठीक है, राइस, व्हीट, दिस थिंग ना, वेजिटेबल्स, ओके। तो who takes care of this, your mom, right। तो mom knows कि how much quantity is needed। तो when the quantity, मान के चलो आटा है 10 kg, तो generally once the 10 kg is finished, then they will not order, right। the moment 2-3 kgs are left, then the mom will tell to the your father, right, कि this much is now we need this is called PR। PR दे रहा है, मतलब परचेज रिक्विजिशन, राइट, उनको दे रहा है, वो अप्रूव कर रहा है हस्बैंड। फिर उसके बाद क्या होगा, पीआर के बाद क्या होता है, क्या होता है पीआर के बाद, क्या होता है उसके बाद, क्या सेकंड प्रोसेस क्या था, हस्बैंड क्या करेगा, सॉरी द फादर व्हाट विल डू, क्या करेगा, ग्रोसरी खत्म होता है तो कहाँ से लाते हैं आप लोग ग्रोसरी, ग्रोसरी कहाँ से लाते हैं, 10 मिनट्स डिलीवरी, कहाँ से, ग्रोसरी कहाँ से शॉप आते चेक हैं, करेंगे कहाँ डिस्काउंट चल रहा है, कहाँ क्वालिटी अच्छे मिल रही डिस्काउंट है। चल रहा है, या आप देखेंगे घर, आपका घर वाला जहां पर में आपको लग रहा है, तो आपका जो फादर है कहाँ से लाता है, जहाँ से बाकी में मिल जाए, जहाँ पर बाकी में मिल जाए। तो वो लोग वेंडर सिलेक्शन कर रहा है ना, वेंडर सिलेक्शन, जहाँ वो बाकी मिले, डेट में मिले, या अच्छा क्वालिटी मिले, घर के बगल हो, घर में ला के दे दे, है ना। तो दिस आर द थिंग, वेंडर सिलेक्शन हो रहा है,
दिस कॉल्ड वेंडर सिलेक्शन, याद रहेगा आपको इससे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या पॉइंट था, उसके बाद पॉइंट क्या था इसमें, इससे सारा पॉइंट याद हो जाएगा आपको। परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर क्या होता है, परचेज ऑर्डर क्या सिंपल है, मॉम फादर को क्या देगी, एक लिस्ट बना के देगी, ये भी लाना है 10 kg आटा, 2 kg तेल, 5 kg भिंडी। दिस इज परचेज ऑर्डर, राइट, ये परचेज ऑर्डर हो गया आपका। उसके बाद इनवॉइस रेज होगा, उसके बाद गुड रिसीव नोट होगा। फिर आपका जब घर में सामान आ जाता है तो मिलाता कौन है, जो मिलाने वाला मिलाएगा आपका। परचेज ऑर्डर इसको 3 वे मैच बोलता है। परचेज ऑर्डर क्या हो गया, जो लिस्ट, इनवॉइस जो आया, सामान जो आया, 3 वे मैच हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद पेमेंट देंगे। अब पेमेंट का हो सकता है या तो कैश होगा या तो 6 महीना बाद आ जाना। ठीक है, और पेमेंट एग्जीक्यूट हो गया। सिंपल प्रोसेस है। आई थिंक दिस इज कांट बी सिंपल देन दिस। इससे पॉइंट्स याद रह जाएगा, कुछ रटने का दरकार नहीं है। ठीक है, इसमें रिस्क क्या होगा, अब द क्वेश्चन विच आस्क्स ओके इन इंटरव्यू विद हो गया P2P रिस्क। ओके, व्हाट इज द रिस्क। अब आप है ना बिना आंसर को देखे, अब आपको एग्जांपल से सारा आंसर याद आ जाएगा। इसमें रिस्क क्या हो सकता है P2P में, व्हाट आर द रिस्क, आप दिमाग लगाओ, आंसर मत देखो। व्हाट आर द रिस्क, नंबर 1 रिस्क क्या होगा, मणिकांता, व्हाट कैन बी द रिस्क इन मटेरियल दिस। क्वालिटी। PR से याद रखता है, PR हो सकता है कि 2 kg आटा का जगह 10 kg आटा हो, फिर भी मम्मी जबरदस्ती पापा को बोल रही है कि और भी मंगाया जाए सामान। हो सकता है ऑलरेडी यू हैव द गुड्स बट स्टिल ओवर ओवरलोडिंग द गुड्स, हो सकता है ना ये चीज। दिस कैन बी वन रिस्क। ठीक है, ठीक है, दिस इज वन रिस्क की इट्स ऑलरेडी देयर बट और मंगाया जा रहा है। सेकेंड रिस्क, वेंडर कौन हो सकता है, वेंडर कौन हो सकता है, लिखते जाइए रिस्क, ये सब रिस्क। वेंडर कौन होगा, वो जो जिससे सामान मंगाया जा रहा है, कौन हो सकता है वो, कौन हो सकता है बताओ, कौन होगा, कौन होगा स्वीटी, नॉन वेंडर, पर्सन हो सकता है, नॉन पर्सन हो रिलेटेड सकता है। पार्टी, हो सकता है रिलेटेड पार्टी हो, तो ज्यादा दाम का बिलिंग बना के आ गया, है ना, ज्यादा दाम का बिलिंग हो करेक्ट। गया। हाँ, 10 रुपए का सामान का 15 रुपए का बिलिंग हो गया, तो दैट कैन बी दिस। फिर क्वालिटी अच्छा नहीं है, बैड डेट हो सकता है, ये सभी है। सामान ज्यादा आ गया, 3 वे मैच, सिक्स एंड पेमेंट विदाउट 3 वे मैच, पेमेंट आपने किया विदाउट द 3 वे मैच, मतलब भी ऐसे आप दे दिया ना सामान, क्या ही देखना है, आप दिया होगा तो सच ही होगा। तो कितना पेमेंट हुआ, 600 रुपया, वही लीजिए, 700 रुपया ले लीजिए, क्या ही दिखने का दरकार है, इसमें कर दी। 3 वे मैच भी नहीं पेमेंट कर दी है, यू आर नॉट चेकिंग द गुड्स विच इज इन द इनवॉइस एज पर द पीओ, नहीं गिव द मीनिंग। पीओ में लिखा था 10 क्वांटिटी पर आया आपके पास 15 क्वांटिटी, इससे बन गया ना पॉइंट्स। पीआर इज नॉट अप्रूव्ड, पीओ इज नॉट अप्रूव्ड, 3 वे मैच नॉट डन प्रॉपर्ली, पेमेंट डन विदाउट 3 वे मैच, क्वालिटी ऑफ गुड्स इज नॉट गुड। पॉइंट ही पॉइंट बन रहा है आपका, ठीक है, तो पॉइंट बन रहा है, पॉइंट बस कुछ भी लॉजिक लगा और के इसमें कुछ ना कुछ वेंडर बना। हाँ जी, वेंडर पैसे भी दे सकता है ना, इसमें वेंडर पैसे भी दे सकता है सामने वाली कंपनी में कि भाई मेरे से ऑर्डर ले लो, उसके लिए मैं आपको साइड बाय साइड आईफोन गिफ्ट कर दूंगा, मैंने मेरा एक्चुअली हाँ क्लाइंट था ये। हाँ, तो इसका आंसर एक बार आप लोग लिख लो ग्रुप में, ठीक है, जो मैंने बताया जरूर, जो भी लिखना है लिखो, ठीक है, इट कैन बी रॉन्ग और राइट, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो व्हाट इज द रिस्क, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो सकता है। ठीक है, जितना लिखो कितना, कल्यूजन, कल्यूजन में बोला ना, मिली भगत जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर और सप्लायर का बीच में, ठीक है, एम्प्लॉय और सप्लायर का बीच में, ये होता ही है। inadequate control, weak control can be lead to unauthorized purchase. See, most of them will not have the internal audit experience in their article sheet, you don't need to worry। आप अपना घर में काम किए इंटरनल ऑडिट का बहुत बार, याद रखिएगा, ठीक है, इंटरनल ऑडिट घर में बहुत किया आप लोग ने, याद रखिएगा। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, inadequate control, weak control can lead to unauthorized purchase, inadequate data, inappropriate payments, increasing the risk of financial loss, data security breach, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी ब्रीच, फिर नॉन कंप्लायंस, इनएफिशिएंट प्रोसेसेस, ठीक है, वेंडर मैनेजमेंट रिस्क, कैश फ्लो डिस्क्रिपेंसीज, इनवॉइस एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज, इनवॉइस में है, कैश फ्लो में है, कैश फ्लो में है, vendor management, the risk with the poor vendor management, including unreliable suppliers, inadequate due diligence, failure to assess the vendor performance, substandard products and services, vendor बेकार है एकदम, inefficient processes सर ये सब तो such as, अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ना, ये मतलब कंपलसरी हाँ, थोड़ी है कि ये कीवर्ड। एकदम एकदम नहीं, आपको बस एक्सप्लेन करना है अपना भाषा में। इनएफिशिएंट P2P प्रोसेस दैट डिले इन द इनवॉइस प्रोसेसिंग, मिसमैच बिटवीन द ऑर्डर एंड द इनवॉइस। मैंने जो मम्मी पापा का एग्जांपल दिया ना, ग्रोसरी वाला सारा एग्जांपल याद हो जाएगा आपको,
नॉन कंप्लायंस, आप लोग भी सामान वामान लाते रहते हैं, नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये तो पॉइंट्स इजी है। कैश फ्लो डिस्क्रिपेंसीज, लेट पेमेंट गया वेंडर को, लेट पेमेंट जाता है, मिस डिस्काउंट, इनएप्रोप्रिएट कैश फ्लो फोरकास्टिंग, कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। एकदम आपको रटना नहीं है कोई भी चीज को, समझ के कुछ भी बोल दीजिए, और सारा पॉइंट बोलने का भी दरकार नहीं है। इफ यू टेल 3 to 4 पॉइंट्स मोर देन एनफ, आई एम टेलिंग यू 3 to 4 पॉइंट्स, इनएडिक्वेट कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हाँ, तो आज हम इतना ही एक बार के लिए रखते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं एक बार के लिए आप इतना चीज को अच्छे से करो, और ये जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल एक बार खुद से भी गो थ्रू करो, ठीक है। तो आई एम कीपिंग टिल नाउ, टिल टुडे, वट एवर आई हैव डन ना, आई डोंट वांट टू ओवरलोड इट, पर ये मटेरियल को अच्छा से आज कंप्लीट कर लेगा। 2 होमवर्क करिएगा, एक तो P2C कर लीजिएगा, एक आप ऑर्डर टू कैश भी ऐसे करके कर लीजिएगा। स्टेप्स एंड रिस्क खुद से पढ़िएगा, फिर देखिए मजा आएगा, ठीक है, ऐसे करके। चलिए।